Hi guys, welcome to DU Insider and आज हम बात करने वाले हैं that what has been my experience as a second year old wow second year college student. And yeah, let's get into the video. So the number one question is like you why DU? So when I was in 11th, everyone was talking about this one college that was Sri Ram College of Commerce. So yeah, that just became my dream college. Not like I didn't know about other universities or other colleges. It was more about ki DU is a government college, so from the financial perspective also it was more affordable from the financial situation I come from. एक और reason था कि it was Delhi. So I'm not from Delhi. So as an outsider, I wanted to just live the Delhi life. I wanted to see and also grab all the opportunities it provides. Delhi University, it does provide a lot of opportunities, but being in the city, it just gives you a lot of exposure. Like Gurugram is just here, and it is a hub of a lot of companies and startups. Even university itself is a hub of a lot of startups. So yeah. Question number two, that how I get into DU. Like I'm sure if some of you here are CUT 2025 या 2026 aspirants या फिर अगर future में मेरी video अगर चल जाए. Anyways, so of course through CUT you get into DU undergraduate. Also I gave CUT in 2023. So that was like the second time जब CUT हो रहा था, तो almost सारी ही information was available on YouTube. So I was very up to date about what is happening in CUT, where to prepare. Like everything I did was from YouTube and from the main sources it came from. Uh, उस time पे I did not use Insta ज़्यादा, तो only YouTube was my source. Also, how did I prepare? I know ये question होगा, but my preparation was very basic. कि for the core paper of commerce, तो since मैंने अभी boards दिए थे, तो I just knew like पता था मुझे सब कुछ आता था. For English, like English was from a different perspective. तो उसमें बहुत सारे words like you know the syllabus. So और GAT के लिए I studied from a lot of YouTube channels जो अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. तो yeah, the main and the most difficult part, I know अभी CUT लगता है कि भाई CUT पर जब CS पोर्टल खुलता है ना भाई, I can't say the word, but yeah, तब सबकी रहती है. Anyways, so you have to be very on the edge because any mistake can lead to the rejection of your application form. So you have to be very correct. You have always have to keep all your documents up to date and always have to prepare them attested, signed, NOC, a lot of things. Also yeah, always stay on the deadline and be very aware of it. The form ज़्यादा जल्दी मत भरना, पर ज़्यादा लेट भी बिल्कुल नहीं भरना. अगर फॉर्म आपने जल्दी से भर दिया, गलती करती तो इट्स ओके, बट लेट कभी नहीं भरना. दैट हैज़ बीन माई लाइक सबक. लेट्स डू दिस स्टोरी टाइम. तो हुआ कि ये था कि नो वन नोज दिस एक्चुअली. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टेलिंग अबाउट दिस ऑल्सो. तो सो फाइनली जब मैं प्रेफरेंस शीट भर रही थी, तो बेसिकली हुआ ये था कि मैंने रजिस्टर कर दिया था स्टार्टिंग डेज में ही. तो आई वॉज लाइक रिलैक्स कि हाँ भाई, देर वर लॉट ऑफ नोटिफिकेशन कि रजिस्टर कर लो, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर कर लो. आई वॉज लाइक रजिस्टर तो हो गया है, बट ये लोग जो छोटा सा ये लोग साइड में लिख देते थे प्रेफरेंस शीट, विच आई ऑलवेज इग्नोर. आई थॉट कि प्रेफरेंस शीट की तो दूसरी डेट आएगी. लाइक एक पॉइंट में मुझे पता था कि अच्छा प्रेफरेंस शीट आ रही है, लाइक भरना है. बट व्हाट हैपेंड कि मैंने क्या किया, जो लास्ट डेट होती है उस लास्ट डे के शाम को मैं भर रही थी एंड मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरा फॉर्म तो 2 घंटे पहले ही क्लोज हो चुका है. मैं पागल हो गई और फिर मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल्स को उस टाइम में फॉलो करती थी, जैसे मुरमुर श्रीवास्तव, DU बडी एंड जो भी अभी अवेलेबल है, शायद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, सबको मैंने यूट्यूब पे कमेंट कर दिया, मेल्स भेज दिए. एक यूट्यूबर ने तो आई थिंक उसने मुझे मेरा कमेंट ऐसा पढ़ा कि ही वॉज लाइक एंग्री एंड ही मेड दिस वीडियो कि
लोगों को, हम बच्चों को हम इतना बताते रहते हैं, डेट एक्सटेंड भी करवा देते हैं, फिर भी एक्टिव नहीं रहते हैं और मिस हो जाता है। बट 2 दिन जो मैं एज पर थी, बच बच सो करेक्शन वीडियो विंडो के टाइम पे, लाइक आई क्वाइट लिटरली बेग्ड कि प्लीज़ करेक्शन विंडो के टाइम पे न्यू फॉर्म को भी प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना प्लीज़। मेरा प्रेफरेंस शीट इज लाइक वो बना हुआ है, आई एम ऑल रेडी विद इट, बट ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो लोगों का। बट खैर, वो होने के बाद जब करेक्शन विंडो ओपन हुई थी तो मैंने भर दिया था। आई वॉज वेरी श्योर अबाउट माई प्रेफरेंस शीट, मैंने कुछ गलती नहीं की थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो ये तुम भी कोई गलती मत करना, ऐसे ही मतलब मन के लिए अल्फ़ाबेटिकल वाइज कुछ नहीं ऐसा करना। बी वेरी अटेंटिव अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज वन मिस्टेक कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स। सो नहीं मिला मुझे SRCC, या सो मुझे अपने फर्स्ट जो आपके 3 राउंड्स होते हैं अलॉटमेंट राउंड, और मुझे फर्स्ट राउंड में जो जिस कॉलेज में मैं अभी हूँ वो मिला। और मैंने हर एक राउंड में, लाइक आपके पास 3 राउंड होते हैं, एक होता है फर्स्ट राउंड और सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ कोर्स। तो इसमें आप अपग्रेड और कर सकते हो अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिला है तो मैंने अपग्रेड किया और कुछ अपग्रेड नहीं हुआ। आई रियली वॉन्टेड कि एटलीस्ट एक 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 एटलीस्ट एक बढ़ जाए, क्योंकि आई गॉट माई लाइक 7th या 8th प्रेफरेंस मुझे मिली थी। आई जस्ट वॉन्टेड कि कुछ तो एक लेवल ऊपर चले जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो या मैंने फिर फ्रीज कर दिया और अभी मैं इस कॉलेज में हूँ। कॉलेज रिवील, आई एम फ्रॉम Indraprastha College for Women, BCom on the second year, and I love being in a girls' college. Like I know on the internet it's very like girls' college में क्या होता है, it is so boring, you know, no लड़के वगैरह stuff, but I am enjoying it. I'm loving it. I'm loving every second of it. कि you know what, अगर I take a rebirth या फिर I'm given a second chance, तो this time SRCC को छोड़ के बाकी सारे कॉलेज में गर्ल्स करने वाली हूँ, लाइक द टॉप गर्ल्स कॉलेज। राइट नाउ आई एम इन अ टॉप गर्ल्स कॉलेज। सो या, it's amazing. You will find the best women here and you will know what actually goes on